Hello, everyone. Welcome to the channel of ER Rahul Patki. And today we are starting a new concept or new way of reaching with the new type of authors, new type of reach people. Okay, and this is today I'm starting with the very beautiful new author, first time author, Joshna Mohanta. And I like to invite her on this platform, and we will have a good conversation with her. So let's welcome Jyotsna. Hello, Jyotsna So ji. thank you, Rahul. Hi, Rahul. Thank you for inviting me here. So I think you can start from here, right? Yes, yes. So yes, obviously, before talking about your book, I like to know about our viewers like to know more about you. So about your childhood maybe and your career, how it started, everything. So please. Okay, sure. Definitely. I belongs to Odisha or Odisha Mayurbhanj district. But मेरी born brought up education सब कुछ उड़ीसा से हुआ. By education, diploma with mechanical engineering. After that, post diploma in CAD CAM. Next आया BS in engineering and technology. ये मेरा education रहा. एंड कैरियर के बारे में बात करें तो 12 ईयर का रिच एक्सपीरियंस इन एज ए प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर. तो इस तरह का मेरा कैरियर रहा. राइट. आप म्यूट हो गए हैं राहुल. Okay, sorry. So to join some dots, I am also production engineer. I done almost for 15 out of 15 years, I work for 13 years in CAD CAM only, CATIA and all those things. I also not only worked on the product development, I taught product development to students. So some like technical students. So yes, we are on the kind of same journey. Yes, So that's kind of, nice to know about that. Okay, I think you told us in one of our session about your engineering, mechanical engineering, but I was not aware about same, we were like almost same path. But anyway, that's good to know. So we will talk on that maybe in some other session maybe. And apart from that, let me know about how you came to this your journey about you said like engineering, that to mechanical engineering, that to CAD CAM. So that is totally new, different kind of virtual world. And now we are talking about like a coaching and writing a book. So can you tell us about that journey? That will be more exciting. Yes, definitely it is exciting and मैं कहूँगी important भी है. और अभी जो आपने क्वेश्चन पुट अप किया, that is also very much important. अगर मैं अपने लाइफ के उससे लूँ, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो डेफिनेटली आज अजय लाइफ कोच मेरी जर्नी नहीं चल रही होती या फिर हम भी नहीं मिल रहे होते, राइट. सो क्वेश्चन कि कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, जैसे हमें यही सिखाया गया है कि एक ट्रेडिशनल हमें बताया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, जॉब ले लो, फिर शादी कर लो, फिर वही लाइफ हम सबको पता है. ठीक है, तो ठीक है, मेरी जॉब अच्छी चल रही थी, मतलब इनकम था, फाइनेंशियल फ्रीडम थे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं. उस तरह से देखा जाए तो सब कुछ सही चल रहा था, कोई इशू नहीं था लाइफ में. बट और एक चीज आता है कि अब जब इतना सब कुछ हो फिर भी आई थॉट कि क्यों एक कमी जैसा क्यों फील है कि हम स्टक है लाइफ में. कुछ मेरा मेन था कि आई एम नॉट ग्रोइंग, आई वाज नॉट ग्रोइंग देयर. मतलब जो पर्सनल ग्रोथ है, चलो फाइनेंशियली तो ग्रो हो रहे थे, बट पर्सनल ग्रोथ का क्या, एक स्टक फीलिंग था, अनसेटिस्फाइड फीलिंग था. क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये था, अगर ये लाइफ है कि जॉब करो और लाइफ सेट, देन सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है. ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आया कि सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब कुछ और भी है लाइफ में जो हम कर सकते हैं. ठीक है, और मोस्टली मुझे चाहिए था पर्सनल ग्रोथ और ऑब्वियसली मनी, सब कुछ चाहिए, बेटर लाइफ सब कुछ चाहिए. तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, राइट, कि ये क्वेश्चन कि राइट. तो उसके बाद आया कि जैसे ढूंढते ढूंढते इनिशियली डेफिनेटली मुझे भी नहीं पता था कि करना क्या है और कैसे मैं अपने लाइफ को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाऊं. ठीक है, बट
सोचते सोचते ढूंढते ढूंढते, जैसे कहा जाता है कि यूनिवर्स पे आपको ये क्वेश्चन पुट अप करो तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस आने लगते हैं। तो मेरा पहला सॉल्यूशन ऐसा आया एज ए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के रूप में। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इंजीनियरिंग सेल्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था, कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैं कहूँ कि मेरा कुछ ऐसा खास था नहीं, पब्लिक डीलिंग कुछ भी नहीं था। स्टिल आई डिसाइडेड टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग Okay. बिकॉज वहां पे मुझे सबसे पहले एक चीज समझ आया कि यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, मुझे सिखाया जाएगा, मेरा कम्युनिकेशन स्किल पर्सनालिटी वो इम्प्रूव होगा। तो इनिशियल लेवल पे मुझे बस इतना ही समझ आया था, और एक्चुअली मुझे यही चाहिए था, तो मुझे यही समझ आया। ठीक है, और बाकी चीजें कि सेल कैसे होगा या फिर लोगों से डीलिंग कैसे करेंगे, मैंने कहा चलो सीख लेंगे, देख लेंगे, ट्राई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आज मैं जहां पर हूँ 2 साल बाद 5 साल बाद भी सेम जर्नी रहने वाला है। ठीक है, सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। वहां पे मैंने डेडिकेटेडली 2 ईयर वर्क किया। ठीक है, और काफी अच्छा जर्नी रहा, क्योंकि बहुत कुछ मैंने सीखा वहां से, अपना सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ जो मुझे चाहिए था वो मुझे वहां से मिला काफी हद तक। ठीक है, बट जैसे मैंने पहले कहा था, अपना बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट था। कहाँ इंजीनियरिंग सिर्फ कंप्यूटर के साथ रिलेशन होता था। ठीक है, बट यहाँ पे लोगों के साथ डील करना है और कई सारे चैलेंजेस आपके साथ होते हैं, मोस्टली इमोशनल लेवल पे, माइंड सेट रिलेटेड। Yes, yes, तो yes. हाँ, और जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सिखाया भी जाता है कि बुक्स पढ़ो, तो मेरे फेवरेट्स बुक्स थे लाइक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और दो साइको साइबरनेटिक्स। तो मेरे ये सभी बुक्स मैं पढ़ चुकी थी, तो उससे क्या होता कि मेरे माइंड को और ज्यादा अच्छे से जानना और समझना, प्लस इसको मैं बेटर वे में कैसे मैनेज कर पाऊँ ताकि मैं अपने कैरियर ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकूं। तो ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर बन चुकी थी कि माइंड को और अच्छे से समझना है, जानना है। ठीक है, तो मैं कहूंगी ये सेकंड मैसेज मैंने यूनिवर्स को छोड़ा Okay. कि ये मेरे Yes. को समझना है। यस, मेरे को समझना है, जानना है माइंड को और अच्छे से कि मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ। तो उसका आंसर कुछ इस तरह से मुझे मिला कि चलते चलते सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे मेरा मेंटोर मिल गया, राइट। और मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ एनएलपी के साथ, Okay. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इस तरह से चला। अब वो भी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहा, मतलब अपने मेंटोर के साथ काफी कुछ सीखा। ठीक है, और रियली ट्रांसफॉर्मेशन भी अपने अंदर दिखाई देने लगे। और चलो ये भी एक फेज हो गया। वहां से धीरे धीरे जर्नी में हमें पता चला कि इसको एज ए हम कैरियर भी ले सकते हैं। एंड देखिए मैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग बात करूं तो मुझे क्या चाहिए कि सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जॉब से सैलरी था बट सेटिस्फेक्शन नहीं था, मुझे चाहिए था सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे मैंने जब सुपर कोच के बारे में और ज्यादा समझ यहाँ पे समझी, तो मुझे पता चला कि ये जस्ट वो प्रोफेशन नहीं है कि जहाँ से हम सिर्फ पैसा कमाएंगे। ये वो प्रोफेशन है जहाँ से हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे, अपना हेल्प तो करेंगे प्लस लोगों को हेल्प कर पाएंगे, लोगों को नेक्स्ट स्टेज पे ट्रांसफॉर्मेशन देने में हेल्प कर पाएंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं मेरे एक हार्ट टचिंग कह सकते हैं, मेरे हार्ट से कनेक्टेड था कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है। सो इस तरह से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई और चल रही है, कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि दिस इज ए कंटिन्यू जर्नी कह सकते हैं, एंड नहीं है। Yes. सो इस And I तरह से। can observe learner in you. So you just joined the network marketing to learn more about different aspects than just CAD CAM or mechanical side. You started that is totally different field. I can understand. Even I done that, but before engineering or during just first year or something, one of my friends started with the network marketing, and he invited me. So I helped him. I didn't actually started a business, but I help him out. I've been with him like for the some meetings and all those things. So I have that idea, and I learned there also a lot of things. So yes, I can completely understand learner in you, and that's why we are here. You are here, and you are talking about now book and all those things. So let's catch up the main question about your book. So we like to know more about your book, the concept, idea, name first. Yes.
Yes, my book is Unleash the Power of Your Mind. Maybe you can see, right? So this is the book, and It is matching with our Rahul, background also. yes, yes, right. So ये बुक है. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बुक Can का you आइडिया show it क्यों आया? fully? We can just, I Yes, can sure. see it half. Okay. So yes, unleash the power of your mind. Superb, superb. Thank you. So अब फर्स्ट थिंग इज कि आइडिया कैसे आया, व्हाई बुक, है ना? देखिए, जैसे मैंने कहा कि चलो नेटो मार्केटिंग से हम कोच की तरफ आ गए कि कोच बनना है, लोगों को गाइड करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है. तो उसके लिए क्या है कि लोगों तक रीच करना पड़ेगा, राइट? लोगों तक रीच करना पड़ेगा. अब ये बुक मुझे लगे कि एक जरिया हो सकता है लोगों तक रीच करने का, अपने मैसेज को, अपने मिशन को ट्रांसफर करने का लोगों तक, है ना? तो मुझे ये बेस्ट आइडिया लगा. जहां पे मैं मान लीजिए कि फिजिकली या वर्चुअली भी नहीं पहुंच पाती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा ये बुक पहुंच के मेरा मैसेज उनको देगा. ठीक है, तो मेरा आइडिया वहीं से आया कि एक बुक लिखे. अब बुक किस रिलेटेड है, क्या है? Yes. देखिए, मैं लाइफ में दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट देती हूँ. फर्स्ट इज कि लाइफ इज द बेस्ट टीचर. लाइफ हमें जितना सिखाती है ना, कोई नहीं सिखाता. ठीक है, तो उसका कुछ ग्लिम्स मैंने इस बुक में डालने की कोशिश की है. दूसरा ये है कि लाइफ टीचर तो है, वो सिखाती कैसे है हमें? हार्ड वेज में सिखाती है, पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके सिखाती है ना? तो वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो होते हैं, स्कूलिंग में हमें, कॉलेज में हमें बाकी चीजें सिखाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, सब कुछ सिखा दिया. बट व्हाट अबाउट लाइफ? लाइफ को मैं कैसे करूं, क्या करूं उसके साथ? चलो, एक हो गया लाइफ. दूसरा पार्ट हो गया ये ब्रेन जो है, ये जो सुपर कंप्यूटर है, उसका क्या? उसको मैं कैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आता है लाइफ में, उसको मैं कैसे डील करूं? अपने माइंड को कैसे मैं बेटर वे में मैनेज करूं? वो किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया. तो एक्चुअली जो एनएलपी सब्जेक्ट है, ये चीजें कवर करती है. अपने माइंड को आप कैसे बेटर वे में मैनेज कर सकते हो, बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो इस सुपर कंप्यूटर का. तो ये दोनों चीजें मैंने इस बुक में डालने की कोशिश की है कि लोगों को एक बेटर प्रोस्पेक्टिव दे पाऊं लाइफ के रिलेटेड, ताकि लाइफ को वो एक स्ट्रगल ना ले, एक टीचर, अजय एक टीचर ले, उससे सीखे और अपने लाइफ को फिर नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा पाए. पहला वो हो गया. और दूसरा ये है कि जो डे टू डे सिचुएशंस आते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, किसी को ओवर थिंकिंग से रिलेटेड हो जाते हैं, किसी को स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है, या फिर कोई प्रोक्रास्टिनेशन से बहुत ज्यादा परेशान है, कुछ करना तो चाहता है, अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके तो जाने चाहते हैं, बट प्रोक्रास्टिनेशन. या फिर कोई अच्छी हैबिट इंस्टॉल करना चाहते हैं, बट हो नहीं पाता. या फिर किसी को प्रोडक्टिविटी का बहुत ज्यादा इशू रहता है कि दिन भर बैठे तो रहते हैं काम करने के लिए, बट इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं. तो ऐसे कुछ टॉपिक्स को लेके, पैटर्न्स को लेके मैंने उनको कुछ सोल्यूशन, इंस्टेंट सोल्यूशंस देने की कोशिश की है इस बुक में, ताकि जहां पे मैं ना पहुंच पाऊं या फिर उन्हें डायरेक्टली कोई मेंटोर ना मिल पाए, तो अपना फर्स्ट हैंड सोल्यूशन एक इस बुक को पढ़ के यहाँ से ले पाए. ठीक है, और उसके बाद अगर वो नेक्स्ट अपने लाइफ को और आगे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, देन आइदर दे कैन कनेक्ट विथ मी और दे कैन फाइंड उनके लिए एक बेटर मेंटर चूज कर सकते हैं. सो मेरा यही रीजन रहा इस बुक के लिखने के लिए. आई होप Really nice. क्लियर कर पाई. I'm really excited to know more, means read your book basically. So is it available now on Amazon or somewhere? Yes, now it is available on Amazon. Oh, If you that's can nice. find. Yes, So yes, definitely. after we, at the end of the our conversation, you can paste the link into the chat box. No worries about that. Sure. And apart from that, yes, now I understood the book is almost personal growth, self development. So is there any specific category students should read it, or these certain like uh, some people, specific people should read it? Yes, students also can read it. मैं यही कहूंगी कि हर एक एज ग्रुप के
एंड हर एक स्टेजेस में इंसान इसको यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि दिस इज अबाउट लाइफ, है ना। आजकल स्टूडेंट्स भी बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एजुकेशन, very अच्छा much. डिग्री, अच्छे मार्क्स लेके, है ना। तो Hmm. एजुकेशन उसमें भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर जॉब प्रोफेशनल, Hmm. या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, तो Hmm. उनको भी एक लाइफ का पर्सपेक्टिव भी मिलेगा, Yes. राइट। उनको एक डायरेक्शन मिलेगा। मेरा मेन मकसद ये है कि आप रीडर्स को एक डायरेक्शन मिले, कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। Hmm. क्योंकि देखिए, एक बुक में ये नहीं कहूंगी कि जरूरत से ज्यादा प्रॉमिस नहीं करूंगी कि एक बुक आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगा, ये इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल होता तो आज कोई स्टक फील नहीं करता, ठीक है। बुक क्या करती है, एक टॉर्च लाइट की तरह काम करती है, कि Okay, लाइट that's दिखाया, interesting. ओके, यस, एक टॉर्च लाइट की तरह काम किया, Hmm. थोड़ा सा रास्ता आपको दिख गया, Hmm. उससे आगे आपको जाना है तो आपको परमानेंट कुछ पावर का इंतजाम करना पड़ेगा। परमानेंट पावर जनरली मैं कहूंगी एक अच्छा मेंटोर होता है आज के टाइम पे, ठीक है। सो ये बुक इज ए टॉर्च लाइट, राइट। सो एनी बिजनेस प्रोफेशन हो गया, या फिर कोई पर्सन रिलेशनशिप्स में सफर कर रहा है, तो एनीबॉडी कैन रीड इट एंड इसका फायदा उठा सकते हैं। I like the concept of torchlight. Torchlight is like we can really visualize, and yes, it can give a light to up to certain limit. And yes, we from one book, there are very few book in the world like a Bhagavad Gita, I will say, is a kind of whole mentorship or a whole like as you said, the big light ka intezam karna padega. But everybody can't write the Bhagavad Gita. In fact, no one can write Bhagavad Gita now. So yes, we have to add something like with your own experiences and all those things. So you've done the very nice job. I really appreciate about your book, and we'll definitely read that book. Apart from that, I'd like to know few things. Like, what are your like future plans? I think there is some connectivity. So yes, it's nice to hear about your book, but we might like to know about your future journey, what you are offering, because I believe most of people, the books are sometimes it is a like a kind of journey ahead. Okay, so we are not just author, we are super coaches. Okay, and Yes. super coaches are have a like a big vision, big plans, and big maybe courses. So tell us about your courses, what you plan to do in the next few months, maybe years. यस, डेफिनेटली आपने जो कहा कि सुपर कोचेस इज नॉट जस्ट ए वर्ड, है ना। इट इज ए एक मिशन स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। सुपर कोच कोच इज ए मिशन स्टेटमेंट एक्चुअली। तो मेरा सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने मिशन के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरा मिशन यही है कि मैक्स टू मैक्स लोगों के पास में रीच कर पाऊं, और जो जर्नी मैंने क्रॉस किया है कि आप कहीं पे स्टक फील कर रहे थे, कुछ आप करना चाहते थे बट कर नहीं पा रहे थे, या फिर अदर पेनफुल इवेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, कोई पास्ट पेन हो गया, या फिर किसी और रीजन से हम मेंटल रूप में सफर कर रहे हैं, फिजिकल रूप में सफर कर रहे हैं, है ना। तो मेरा मिशन यही है कि लोगों को इन सब सिचुएशन से बाहर निकालें, ठीक है। जब हम इनसे बाहर आ जाएंगे, अपना मेंटल कंडीशन, फिजिकल हेल्थ से बाहर आ जाएंगे, देन हम दूसरी चीजों के बारे में सोच पाएंगे। क्योंकि लाइफ जस्ट इतना नहीं है कि रूटीन को फॉलो किया, जॉब किया, खाना खाया, सो गए, दैट्स ऑल, ऐसा नहीं है, नहीं है। ठीक है। क्योंकि हाँ बिल्कुल, हम्म, तो मैं जो अभी ये बोल रही हूँ, ये अपने लाइफ से कनेक्ट करके बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे लाइफ में भी पास्ट में कुछ पेनफुल इवेंट्स थे, ठीक है। एंड जब तक मैं उनमें स्टक थी, उनके बारे में यहाँ पे चलता रहता था, तब तक मैं लाइफ कैरियर के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि मैं उसी में फंसी पड़ी थी, ठीक है। जब मैं वहां से निकल पाई, देन मैं अपने नेक्स्ट कैरियर, नेक्स्ट पर्सनल ग्रोथ, उसके बारे में सोच पाई, ठीक है। सो मेरा मिशन यही है कि सबसे पहले उनको फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ठीक किया जाए, मतलब वो खुद को हील कर पाए, राइट। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि जैसे मैंने कहा, लाइफ, ह्यूमन लाइफ बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है कर सकते हैं हम, खुद के लिए हो जाए, सोसाइटी के लिए हो जाए, ठीक है।
यस राहुल, सो अभी मैं ये बता रही थी कि व्हाट आई ऑफर, हाउ आई हेल्प पीपल, है ना। तो देखिए अभी फिलहाल मैं 1-to-1 काउंसलिंग लेती हूँ पर्सन्स की। जैसे मैंने कहा मेरा मेन फोकस है पहले हीलिंग प्रोवाइड करना, मेंटल एंड फिजिकल हीलिंग। तो जो भी पर्सन स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर ओवर थिंकिंग पैटर्न्स, है ना, या फिर पीस ऑफ माइंड, मोस्टली मेरे कुछ क्लाइंट से मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि मैम मुझे बस पीस ऑफ माइंड चाहिए। ठीक है, तो जो भी मेंटल चैलेंजेस से क्रॉस कर रहा है उनको मैं गाइड करती हूँ। प्लस जो फिजिकल हेल्थ लाइक ओबेसिटी हो गया या फिर और दूसरी जो हेल्थ, फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस हैं, उनमें मैं लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड करती हूँ। बिकॉज देखिए माइंड और बॉडी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो We. सिर्फ हाँ, यस राइट, एंड एनएलपी यही कहती है कि यू कैन हील योर बॉडी, राइट, यू कैन हील योर बॉडी थ्रू एनएलपी। एंड क्योंकि देखो सब कुछ स्टार्ट होता है माइंडसेट से। अगर यहाँ पे माइंडसेट आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं अपने बॉडी को हील कर सकता हूँ, सो कोई भी डिजीज आपके लिए आप हर एक डिजीज से बड़े हैं, है ना। तो फिजिकल हेल्थ में मैं लोगों की काउंसलिंग हेल्प करती हूँ। और उसके नेक्स्ट आता है मैं 2 days मेरा फ्री वेबिनार्स होते हैं, जिसमें लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एक जानकारी, एक अवेयरनेस हो कि क्यों फिजिकल वेलनेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए 2 days का मेरा वर्कशॉप रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट कोई पर्सन आगे प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है ना, तो देन मेरा 4 days का सेशंस वगैरह रहता है। वो एक लंबा जर्नी रहता है, यू कैन से 2 or 4 months डिपेंडिंग अपन नीड। तो क्योंकि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट कभी भी नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह का जर्नी रहता है। Okay. ठीक है, तो राइट नाउ आई प्रोवाइड दिस थिंग्स। Okay. Journey with Josna. We can say like. यस, यू कैन से। Okay. Very nice. I like really nice to know about that. Maybe in future I will be part of that journey. Never know. श्योर, यू आर वेलकम। So, yes, apart from this, like what you want to say to the, like, say, future, like generation of coaches or the some people who are like into NLP, they are interested in NLP. So, what is your message to them? ओके, यस, देखिए एनएलपी आज के टाइम पे मैं कहूंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया हमारे लाइफ का, है ना। और क्योंकि सबसे पहले मैं वही कहूंगी, फिर से वही कहूंगी कि अपने आप को हील करना जरूरी है और उसमें एनएलपी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए सारे रिसोर्सेस अपने अंदर हैं। बॉडी को चाहे हील करने की बात आ जाए या फिर कैरियर में कोई चीज अचीव करने की बात आ जाए, बिजनेस में कोई चीज अचीव करने की बात आ जाए, सारे रिसोर्सेस आपके अंदर अवेलेबल है ना। बट हम क्या उस चीज को कहीं ना कहीं हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको बिलीव ही नहीं कर पाते कि मैं कुछ कर पाऊंगी। क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही बचपन से ऐसी हो रखी है कि बेटा पढ़ ले, जॉब कर ले, जॉब अच्छा मिल गया तो तेरी लाइफ सेट है। Yes. ठीक है, तो उससे ज्यादा इंसान को पता ही नहीं होता कि अगर जैसे मैं इंजीनियर थी, तो सबसे पहले थॉट मेरे माइंड में क्या आया कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे और कुछ आता नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ। वैसे कोई डॉक्टर है तो उसको यही ब्लॉकेज रह जाता है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे बस यही आता है, मैं और क्या करूँ। तो एनएलपी और एक लाइफ कोच ये करता है कि पहले तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना सिखाता है कि यस यू हैव द पोटेंशियल, जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो, है ना। बस आपको प्रॉपर मेंटोरशिप की, ट्रेनिंग की, एजुकेशन की जरूरत है। ठीक है, Yes. सो हाँ बिल्कुल, तो यही है अपना आगे का जर्नी, अपना मिशन यही होने वाला है। Okay. ठीक है, आई होप आई आंसर्ड। Yes, yes, थैंक and I like to tell you about, or the audience about, even my, in my case, like यू। initially, like my parents used to see, my like family used to see that I'm like attending a lot of webinars, I'm spending a lot of time in front of on the laptop, even on Wednesdays, means like weekdays, weekends, like Saturday, Sunday, there is generally holidays, but since last say you can say lockdown, I'm always I'm more busy on weekends than weekdays. So they never understand क्या चल रहा है भाई.
बट रिसेंटली अभी उनको पता चला, जब मैंने अराउंड 15-20 डेज पहले थोड़ा सा उनको ज्यादा डिटेल में बताया कि आई एम राइटिंग अ बुक, उनको पता था आई एम राइटिंग समथिंग, बट इट वाज they were never expected to be like a proper author. And even like I used to have my webinars, I used to talk on webinars, थे रफ आइडिया था उनको, बट जब मैंने ये सब उनको एक्चुअल में बताया, सो दे लाइक वेटेड फॉर लाइक चलो बुक लॉन्च हो गया, सो दे सेड नाउ just stop now, just like focus on your main thing like अभी वो बाकी का सब बंद कर दो, अभी हो गया, बुक लॉन्च हो गया तुम्हारा, यू आर ऑथर नाउ, so now just spend some time with us, like spend time with some give more focus on the main thing like a job. And it is like difficult to make them understand that कि यार ये अभी तो ये स्टार्ट है, तो मैं वो उनको प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी उनको बता रहा हूँ कि ये प्लान्स है आगे, एंड आई मे बी लाइक मैं कभी जॉब छोड़ूंगा ये अभी तक प्रिपेयर नहीं किया, बिकॉज दे कैन नॉट डाइजेस्ट दैट, बट अंडरस्टैंड। सून सून लाइक मैं वो भी ये करूंगा, बट सेम थिंग लाइक वो एक फ्रेम होता है, एंड वही मैं भी आप हम सब लोगों को ये करना पड़ेगा कि इट्स नॉट द ओनली थिंग कि हम सिर्फ जॉब ही करना चाहिए, इंजीनियर हो गए तो जॉब ही करना चाहिए, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स और लाइक कंप्यूटर इंजीनियर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक वी शुड डू कोडिंग ओनली, वी शुड कोड, बट द ह्यूमन ब्रेन इज आल्सो कोडेबल, आई थिंक I don't know codable is a right word or not, but yes, so that's the possibility, and we should like those are like really interested in NLP or human like psychology, they should choose this path also. So yes, anything means like you want to say in the ending, like we like Yes, definitely. I want to give a special message to all my listeners या फिर readers, है ना? तो देखो, first यही है मेरा statement कि heal yourself. Again, I will say heal yourself, body, mind, heal yourself. ठीक है? Second is limit लेके मत चलो, कि जो अपने आप को limit मत करो. Don't limit yourself, है ना? और third ये मैं कहूँगी कि अपने को अपने ऊपर बिलीव करना सीखो. मैं सीखो इसलिए यूज करूंगी क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं है बचपन से, क्योंकि यहाँ पे बचपन से रोक टोक मिला है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इधर हो जाएगा, गिर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो ये बोल बोल के हमें क्या लिमिट कर दिया है ना? हमारे किसी ने इतना सोचा नहीं कि इन शब्दों से एक बच्चे पे या फिर टीनेज पे क्या असर हो रहा है कि ये मत करो, वो मत करो. बट ये कहीं ना कहीं हमें अंदर से लिमिट कर रहा है, लिमिट कर रहा था. इसकी वजह से ये अभी यंग जनरेशन कह लो या हर जनरेशन में लिमिटेशंस बढ़ गया है कि मेरे को ये आता है, यही करना है. तो मैं यही कहूंगी, अपने लिमिटेशंस को हटाओ, ठीक है, और अपने ऊपर बिलीव करना सीखो. ये मेरा मैसेज है, ये 3 मैसेज है अपने रीडर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट में भी उनके माइंड में क्वेश्चंस आ सकता है कि बिलीव मतलब ठीक है, बिलीव कैसे करें? आई विल से हर चीज का सॉल्यूशन होता है. इवन जो आज मैं कह रही हूँ कि आज जो मेरा सेल्फ बिलीव है, कहीं ना कहीं मैंने भी वही पाथ से क्रॉस किया है. मेरे पास भी सेल्फ बिलीव नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल इतना नहीं था, बट आई क्रॉस्ड एवरीथिंग. मैंने भी सीखा. ठीक है. तो एनीबॉडी कैन डू. और आज तो सोशल मीडिया है, कंटेंट रिच वर्ल्ड है, जो चाहिए आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो. बट ये है कि वहां पे भी फिल्टरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? yes, जैसा खाना दोगे आपका लाइफ वैसा ही क्रिएट होगा. तो अच्छा खाना कीजिए, अच्छे बुक्स पढ़िए, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़िए, और बस अपने ऊपर बिलीव करिए. तो बस यही 3 मैसेज मैं कहूंगी, ये 3 मैसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंचे. एंड थैंक यू. Okay, so that's great. Content rich world. I like the concept. So yes, it is. There is a lot of content, and we can deliver it in our own way. Apart from that, just before ending, I'd like to take you a minute to म्यूट. आप म्यूट हो राहुल. I heard from the universe, the same universe which guided you, that you are preparing for another book, next book.
So like to know Yes. about that in 1 minute. Maybe there is a very rough idea or you are just thinking about that, but is it true in your telling me truth or not? Just we want to know that. Yes, actually it is true and I never expected कि ये क्वेश्चन भी आएगा. ठीक है. Yeah. Yes, क्योंकि हाँ जैसे ये मैं कहूँगी मेरे मेंटोर्स की वर्डिंग थे, उनसे मैं ये चीज सीखा है कि आपके माइंड में कोई चीज आइडिया आता है तो उसको जितना जल्दी पॉसिबल है एग्जीक्यूट कर लो. और ये जो यूनिवर्स है एक ब्रेन में आइडिया नहीं देता है, कई ब्रेन्स में सेम टाइम पे आइडिया डालता है, जो पहले एक्शन ले लेता है उसी का हो जाता है. ठीक है. Awesome. सो राइट, तो ये चीज मेरे माइंड में बैठ गया था कि यस, अगर मेरे माइंड में आइडिया आया है कि नेक्स्ट बुक मुझे लिखना चाहिए, ये सब्जेक्ट है तो मुझे करना चाहिए. तो मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट कुछ इस तरह से अभी रफ है, जैसे आपने कहा कि यस इट इज नाउ रफ आइडिया है. तो बट ये आइडिया है कि मैं लिखना चाहती हूँ कि पावर ऑफ सेल्फ लव, पावर ऑफ सेल्फ लव, उसके Okay. ऊपर मेरा वो है, आगे बढ़ेगा कंटेंट. तो Very दिस good, इज द very good. We will wait for that and we will go through this book and from that we will come to know. हमें पता चलेगा कितना powerful author है ये. So definitely we will pre-book your next book. थैंक यू. Okay, thank you for coming on this platform, sharing your great thoughts with us, your vision, your courses, your mission, and everything about your next book also. So really great thing. Thank you and keep coming with your new books, new ideas, new mission. So thank you very much. And with